It's been 2 months. We know that we have not uploaded a video, but we have to apologize for the same. And we would like to tell you what happened. What happened? Exactly. What happened? Yeah, ये last part जो होता है year का, you have a lot of work. You have to do wind up. आपको rooms shift करने होते हैं कई बार. आपको assessment reports, grading up to the mark करनी होती है. उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप normally plan करते हो अपने last few months पर वो वैसी होती नहीं है. But on the spot आपको improvise करना पड़ता है, which takes longer time. So we've been really busy. Yeah, and if you have a kid on the top of that, then all the time that you have after school also goes with that. So in this video, we will talk about how the week looks like if you are teaching in Dubai. So we will cover topics like timetables, daily hours, After school activities, lesson timings, basically क्या आपको differences feel होंगे when you will move from India or any other country that you're working in currently, और अगर आप यहाँ move करते हो तो आपको क्या differences feel हो सकते हैं. Basically यहाँ का schedule क्या है throughout the week, we are going to give you the picture of that in this video. So let's get started. तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पर फ्राइडे ऑफ होता है, तो हमारा जो वीक है स्टार्ट्स फ्रॉम संडे टू थर्सडे. फ्राइडे सैटरडे इज द वीकेंड एंड वीकेंड्स आर लेजिट, क्वाइट लेजिट. नोबडी बॉदर्स यू ऑन द वीकेंड. वीकेंड इज ऑल योर्स. एवरीबडी वेट्स फॉर द वीकेंड. और 5 दिन सब लोग एकदम मतलब दम लगा के काम करते हैं बेसिकली. So, अगर आप टीच कर रहे हो वीकली, यू आर एंटाइटल्ड टू वर्क फॉर 48 hours per week. और इससे कम भी हो सकता है, इससे 1-2 घंटे ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्कूल. आप सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रिपोर्ट करते हो स्कूल. 7 to 7:30 मीन्स वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है. और इन द आफ्टरनून इट गोज फ्रॉम 3 to 4 o'clock, anywhere in between. So you can see 8 to 9 hours daily you work, out of which your contact times with the students is roughly about 5 hours. That means 5 lessons, and it tends to get sometimes 6 lessons as well. और कभी-कभी ये 3 या 4 भी हो जाते हैं. तो it depends कि आपका overall weekly timetable कैसा लगता है. और आपके पास normally 1 या 2 non-contact time रहता ही है for you to plan lessons and plan other things around that. You know, we have a lot of things to do apart from just being in front of the students. There's a lot of work that goes into place before you actually appear in front of the students. So that is there for you to actually cover in that non-contact time. So yeah, planning, marking, feedbacking, whatever. For example, मैं अभी जिस स्कूल में हूँ, मेरा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7:15 to 7:30 के बीच में है, and I can leave the school at 3:15. For Sahil, it's like he has to report to school at 6:45 a.m. and he can leave by 3:30 p.m. So roughly यही अराउंड टाइमिंग्स रहते हैं. स्कूल के जो लेसन टाइमिंग रहते हैं, जिसको हम इंडिया में या पीरियड बोलते हैं, एक पीरियड कितने टाइम का रहता है, वो यहाँ पर जनरली रहता है 50 minutes to 1 hour. तो दिन में 6 से 7 लेसन रहते हैं, जिसमें से आप साहिल ने ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपका 5 या 6 भी हो सकते हैं कभी-कभी. ऐसा नहीं है, बट टोटल नंबर ऑफ लेसन दैट यू गेट इन अ वीक शुड नॉट एक्सीड मोर देन 25 मैक्सिमम. दैट्स द अपर लिमिट, बट जनरली 21-22 यही रहता है रेंज उन सब चीज़ों का. उसके अलावा हफ्ते में आपको 1 दिन या फिर 2 दिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी प्लान करनी होती है. नॉर्मली जितने स्कूल में मैंने अब तक जॉब किया, प्रिया ने की है, हमें बोला ही गया है दैट यू ऑप्ट फॉर एक्टिविटी क्लब, बिकॉज हम वैसे भी स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं. मैं म्यूजिक टीचर हूँ या आर्ट टीचर है, तो हमें वैसे भी करना ही होता है. वी नीड टू डू इट. But definitely, even if you are a math teacher or English teacher, they will ask you to do some kind of intervention club, support activity club, or any other. If you are an English teacher or you're good in badminton or cricket, you run that club. So you will have to run any club based on your other skills. Exactly. So any of your interests or your subject related. और एक चीज़ और शेड्यूल होती है, सुबह मॉर्निंग ब्रीफिंग्स होती हैं जैसे ही आप स्कूल जाते हो, जो कि कोविड के टाइम पे अभी ऑनलाइन हो गई है.
और एक होता है डिपार्टमेंट मीटिंग थ्रू आउट द डे विच इज़ आई थिंक कॉमन इन इंडिया एंड हियर। तो डिपार्टमेंटल मीटिंग वो आपका कॉमन स्लॉट देख के वंस अ वीक वो बुक करते हैं। So once a week you have department meeting, and every day or alternate days of the week you have the morning briefing happening in the school. And another thing that we would like to tell you about is each teacher can be given a homeroom, फॉर्म रूम, एक क्लास की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है इफ़ यू आर अ सेकेंडरी टीचर एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ स्पेशलिस्ट टीचर इन सेकेंडरी। फॉर प्राइमरी और ऑलरेडी क्लास टीचर सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो उसमें आपकी पैस्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्लासरूम को लेके कि बच्चे सेफ हैं, उनको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल रही है, इफ़ देयर इज एनी इन्फॉर्मेशन, इफ देयर इज एनी अदर थिंग्स दैट दे नीड टू नो अबाउट, बेसिकली उनकी एक जनरल केयर, उनके पेरेंट्स के साथ टच में रहना। सो यू आर पेरेंट्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट for them so that parents can approach you if they need to communicate to school about anything. Apart from that आपको break duty, lunch duty और dispersal duty भी मिल सकती है। For me it is like once a week. For you? For me, I have dispersal duty once a week. I don't have any break duty this year. I have had break duties before, right. But this year luckily I don't have any. So it depends. So it depends. I think it's not more than twice a week. Minimum expectation once a week है and that's that. राइट, टाइमिंग्स हम आपको बता चुके हैं। टाइमिंग फॉर स्टूडेंट्स इज फॉर एग्जांपल अगर आपका 7:30 बजे टाइमिंग है तो बच्चे 15-20 मिनट लेट आएंगे उससे, और अगर आपका वापसी का टाइम 3:30 बजे है या 3:15 बजे है तो बच्चे उससे 1 घंटा पहले चले जाते हैं। 2:30 बजे बच्चे चले जाते हैं तो आप 3:30 बजे जा सकते हो। 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है या फिर 1 आवर का, तो जिसमें आपको अगेन थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अगर डिपार्टमेंट मीटिंग हो उसका टाइम मिल जाता है, या फिर आपको कोई भी अपनी प्रेप करना है फॉर द नेक्स्ट डे, यू गेट ऑल दैट टाइम, right? Yeah, I would like to just add one more point, and it depends on the school. Just don't quote us if you get more timings or your reporting time is like earlier than what we told you. It purely depends on school. Like my school, I have to reach school at 6:50, but the kids come at 7:30. In the afternoon, kids go by 2 o'clock, and then I have to stay till 3:30. ये timings जो है ये school to school ही depend करते हैं। So assemblies used to be a very common feature throughout the year, और हर हफ्ते में एक असेंबली तो हमारी हो ही जाती थी, या 2 हफ्ते में एक बार, जहाँ पे सारे बच्चे या फिर प्राइमरी के या फिर सेकेंडरी के या फिर वट एवर क्लास हैज़ दी असेंबली यूज टू गैदर इन द मल्टीपर्पज हॉल एंड यूज टू हैव दी असेंबली। कोई अवार्ड सेलिब्रेशन हो, कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिविटी हो, कोई अचीवमेंट्स हो बच्चों की, ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट होती थी। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देनी हो उसके लिए भी असेंबली होती थी, जो कि अब सब एक न्यूज़ लेटर या फिर एक होम रूम अनाउंसमेंट्स के जरिए आता है इन टू द होम रूम टीचर और द क्लास टीचर, और फिर हम अपने क्लासेस में उसको कवर कर लेते हैं। अगर असेंबलीज भी होती हैं तो भी अगर कुछ बहुत स्पेशल ओकेजन है तो वो सारा या तो प्री रिकॉर्डेड आता है या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आता है, और बच्चे अभी कोविड के टाइम पे दे सिट इन देयर क्लासरूम एंड वॉच इट, तो देयर आर नो स्पेशल असेंबलीज, बट दिस इज द रेगुलर फीचर वी वुड लाइक टू टेल यू, अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम कोविड सिनेरियो। Yeah, exactly. So assembly time सुबह भी हो सकता है, या फिर आपके जो फॉर्म टाइम है, जो अगर आप फॉर्म ट्यूटर हो, फॉर्म टाइम में अपनी फॉर्म क्लास के पास जाते हो, पूरे दिन में एक 30 to 40 मिनट्स का स्लॉट होता है, आप उनके साथ बैठते हो, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, और अगर कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो आप उनके लिए अनाउंस करते हो। इसी टाइम में से असेंबली का टाइम भी पुल आउट होता है, विच यू कैन कंसिडर एज an allocated time within a week. That's it. This is what the school week looks like. Now how the school year looks like is something we're going to cover in the next video, and from now on we have the regular videos coming for you guys, and we promise that we will stick to the schedule. One more thing, due to the volume of messages that we are getting on YouTube and Instagram, I know it requires us to be supporting you in a manner that you are happy about it, but बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक फीचर है जो अपने चैनल पे स्टार्ट किया है, दैट्स कॉल्ड मेंबरशिप, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड देन उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं।
So watch this space for that information coming as well. And if you have any more questions, please leave them in the comments so that we can answer them. We have been quite active in responding to you in the comment section, so that's the place that you can contact us on. Insta ID, हमारा email address और हमारा फेसबुक पेज का एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. बट वी आर मोस्टली वेरी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन, isn't it? So yes, we wish you all the best and we wish that you achieve your dream job here in Dubai. And if you like this video, please like, subscribe and share. That's needless to say, guys. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye.